वेलकम एंड नमस्ते। गुड इज हार्ड। ये पता है कि अच्छी चीज़ें कठोर होती है। एंड व्हेन यू ग्रो अप, जब थोड़े बड़े होते हो, यू आर प्रोग्राम्ड फॉर ए गुड लाइफ, फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। यू नीड work, you need labor. You start laboring as well for the good of your life. But once the difficulties are coming and you need patience, you think that the path chosen by you is wrong. But the path is never wrong. You need patience. You must give patience to your journey for the best of your life. ये आज का जो लेक्चर है आप देख रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक एक करके वन आफ्टर अनदर वी विल सी। फर्स्ट पॉइंट इज देयर, matter is made up of particles. Matter is made up of particles. Of course, particles are atoms, molecules. Okay. Now, difference between the atoms and the molecules. Atoms are the smallest particle and take part in the chemical reaction. Molecules are also the smallest particle, but bigger than the atoms, and the molecules don't take part in the chemical reaction, isn't it? So for example, you talk of the oxygen. Oxygen की हम बात करते हैं, oxygen, isn't it? You all know the symbol of oxygen is O. Once you write O आप लिखते हो तो it means it is your atom. And when you write O2, it means your molecule is O2. Very clear? So this is how, and this is what atoms and the molecules and the particles constitute matter. Next, come to the states of matter, right? States of matter, say solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate. Isn't it? We will see in details further. A solid, just like to liquid and gas, isn't it? Just I told you, मैंने आपको बताया कि matter is made up of particles called atoms or the molecules. So now this differentiation, 3 states of the matter, solid, liquid and gas, ठोस, द्रव और गैस, इसके पीछे आधार यह है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे, सो कॉल्ड द पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो रिमेंबर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग्स द पार्टिकल्स इफ मैक्सिमम, यदि कणों के बीच, अणुओं और परमाणुओं के बीच जो आंतरिक बल है ये यदि अधिकतम होता है तो वी कॉल इट एज द स्टेट ऑफ द सॉलिड, ये ठोस की अवस्था होती है। यदि ठोस से कम होता है तो ये द्रव की अवस्था होती है, और बहुत ही कम होता है, या यू कैन से कि इन आइडियल कंडीशन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी नहीं हो, तो उस स्टेट को हम कहते हैं गैसेस स्टेट। तो वंस अगेन टू रिपीट,
how the three states are differentiated? It is on the basis of the force of attraction among the molecules. If the force of attraction is maximum, we call it as a solid. If the force of attraction is less or intermediate between the solid and the gas, it is said to be liquid. And if there is no force of attraction amongst the molecules or the atoms or the particles, or negligible force of attraction, then the state is called gas, isn't it? Say for example, say ice, water, वेपर. जैसे आप अपने रेफ्रिजरेटर से घर में फ्रिज आपके पास है एंड टेक आउट द पीस ऑफ आइस, एक बर्फ के टुकड़े को आप निकाल लें तो सॉलिड है और देखेंगे वो सिगड़ी वो पिघल जाता है, पिघल के पानी बन जाता है, लिक्विड स्टेट. और यदि इफ़ यू कलेक्ट दैट वाटर, उस वाटर को आप कलेक्ट कर लो और उसे गर्म कर दोगे, देखोगे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपने क्या देखा यहाँ पे? ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो ये फेज है, दीज आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ कन्वर्शन का क्या फैक्टर्स हुआ? हियर द फैक्टर ऑफ कन्वर्शन अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इज द टेम्परेचर. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर आप इसको हम चेंज कर सकते हैं. सी समथिंग मोर. So just we have talked the force of attraction between the particles, say solid, maximum, liquid, intermediate means less, gas, negligible, or in ideal condition, no force in ideal condition, isn't it? Next come to a change of state, right? See here, solid, liquid and gas. Is clear? If you want to convert solid into liquid, solid से आपको liquid convert कर इधर देना है ये, तो क्या करना होगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा. If increase the temperature, then the solid can be converted into the liquid. ये कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? अब जो हमारा ये सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को फ्यूजन. क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, राइट? फ्यूजन. ये आगे के पेज में मैंने दिया भी है, फिर मैं इसको और यहाँ पे लाइक क्लियर करूँगा, राइट? दिस इज कॉल्ड फ्यूजन. फिर यदि आप लिक्विड से गैस में जाना चाहते हो, ये दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. नाउ कम बैक. यदि आप चाहते हो कि गैस से ये आ जाए लिक्विड में, हो सकता है ना, गैस से लिक्विड में आ जाए. और फिर यदि आप चाहेंगे कि ये लिक्विड भी, ये मेरी बात को आप समझ रहे हैं? उल्टी क्रिया करा रहे हैं हम लोग. आप देख लें, फिर आपके लिए एक पेज अलग से भी है कि आपने जो सॉलिड से लिक्विड में गए, दिस इज फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, बैक हो जाइए, लिक्विड टू सॉलिड, उलट गया. फ्यूजन क्या हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ. सॉलिड से लिक्विड आपने यहां देखा, बैक हो जा रहा है, फिर
मीन्स सॉलिड, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन है, लिक्विड से सॉलिड में आना, उल्टा हो जाना है, द्रव को फिर ठोस में बदल देना है, राइट। फिर वेपोराइजेशन क्या हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुए। अब उल्टी क्लियर कर दीजिए, उसको कहेंगे कंडेंसेशन, मीन्स गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन हो गया। अब क्या है, एक और प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, यहां पर देखें कि सीधे आपको जाना पड़े यहां से यहां, स्ट्रेट टू गैस। यहां पर देखें, यदि सॉलिड टू गैस यदि जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड होगा, इट विल नॉट assume the state liquid, rather it will directly go to the gas। जैसे हमारा कैम्फोर होता है, कपूर होता है, NH4Cl नौशादल होता है, NH4Cl हुआ हमारा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर हुआ, कैम्फोर, ये जो है सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, सॉलिड से लिक्विड में। फिर एक और प्रोसेस मैंने लिखा है यहां पे, आप देख लें, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा, सीधे वी विल कम बैक टू सॉलिड, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सॉलिड से जो गैस में जा रहा है वो सब्लिमेशन हुआ, लेकिन जो गैस से जो सॉलिड में जाएगा उसे क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। दिस इज फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो दिस इज हाउ बाय चेंजिंग द टेम्परेचर यू कैन कन्वर्ट सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, isn't it? Next come to the pressure value. What will be the role played by the pressure? प्रेशर का क्या रोल होगा? तो आपने सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है हमने। नॉर्मली क्या है, CO2, ये गैसेस स्टेट होता है जो एटमॉस्फेयर में भी है हमारे पास, ओके। एंड इट एड्स टू पॉल्यूशन ऑल्सो, जो हमारे प्रदूषण को भी ये करता है, ऐड करता है ये CO2 हमारा। अब क्या यहाँ पे, यहाँ देखें यहाँ पे कि सॉलिड CO2, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये बात समझ रहे। अब क्या है यहाँ पे, बैक हो जाते हैं कि प्रेशर को चेंज करेंगे, वी विल चेंज द प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर वैल्यू। क्या करेंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे। नॉर्मली क्या है कि जो CO2 जो गैसेस से सेट हुआ, CO2 गैस, ये CO2 सॉलिड हो सकता है यदि प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें बाय 1 एटमॉस्फेयर, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस बाय 1 एटमॉस्फेयर, राइट। हमने लिया CO2 को, वी टेक CO2 इन द गैसेस स्टेट, उसको क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया बाय 1 एटमॉस्फेयर, देन दिस CO2 इन द गैसेस स्टेट will directly come to the solid state and we call it as the solid carbon dioxide or the dry ice. Very clear? Next come to plasma. मैंने बताया था कि पहला तो हुआ solid, next liquid, third gas, now come the plasma. Plasma ये क्या है, it's known as the fourth state of matter. Plasma is known as the fourth state of matter. Plasma, fourth state of matter, fourth state of matter. ये क्या है, इट्स आयोनाइज्ड स्टेट। इसमें जो मैटर जो होते हैं उनकी अवस्था जो होती है आयोनाइज्ड होते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरी क्लियर।
नॉर्मली क्या है, जो हमारा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टार और द सन, जो सूरज में जो हमारा जो हाइड्रोजन की अवस्था होती है, जो हीलियम की अवस्था होती है, जो भी गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली द सन इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट टू द हाइड्रोजन देयर इज द हीलियम गैस, एंड यू मे बी नोइंग दैट देयर इज द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, एंड वेयर हाइड्रोजन गोज इनटू द helium and helium goes back to the hydrogen and the process goes on, isn't it? वहाँ पे जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस. इमेजिन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, इट इज अबाउट द 10⁻7 डिग्री सेल्सियस. हाउ बिग दिस टेम्परेचर इज. तो उस समय जो हमारे हाइड्रोजन हीलियम जो होते हैं वो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, एंड दैट फॉर्म इज नोन एज द प्लाज्मा. क्लियर हो गया. क्या मैंने लिखा भी है एग्जाम्पल्स के रूप में, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस या कोई और गैस बने होते हैं, और जब फ्लोरेसेंट ट्यूब से जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, व्हेन यू अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द फ्लोरेसेंट ट्यूब हैविंग हीलियम और द सम अदर गैस, व्हाट हैपेंस, हीलियम गैस इज आयोनाइज्ड, अदर गैस इज आयोनाइज्ड. वेरी क्लियर. और जो चमकना जो होता है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो चमकता है, द सो कॉल्ड द शाइनिंग और द ब्राइटनेस और इल्यूमिनेंस ऑफ द ट्यूब will depend upon the nature of the gas filled inside the tube. किस तरह का गैस उसमें रहता है, गैस के नेचर पर निर्भर करता है उसका चमकना. The quality, understand, the quality will depend, quality of illuminance will depend upon the nature of the gas filled within the tube. Next come to the neon sign bulb. Neon sign bulb neon गैस रहता है. And third जो मैंने पहले बता दिया, in the atmosphere of sun and the stars you find the matter in the state of plasma, that is ionized state. तो कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मा क्या है, तो आप बताएंगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और दूसरी बात क्या बताएंगे, इट इज आयोनाइज्ड स्टेट, और तीसरी बात क्या बताएंगे, इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड द स्टार्स, और इवन यू कैन गेट इट इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब और द नियन बल्ब. नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. दिस इज योर Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Right? This is your fifth state. Fifth state of matter. ये जो फिफ्थ स्टेट होता है, एक्चुअली क्या है कि ये कैसे बनता है. अगर आप if you take extremely low density, if you take a gas of extremely low density and you cool it to the super cool temperature, बहुत कम टेम्परेचर उसको ठंडा कर दो, राइट. काफ़ी कम डेंसिटी को गैस को ले लो और एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर दो. लेट अस कूल द गैस टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर and gas of very very small density. Then you get the state of matter known as the Bose-Einstein condensate. Why Bose-Einstein condensate? यहाँ मैंने लिखा भी है, अब देख रहे हैं आप कि Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature. Why we call this fifth state of matter as the Bose-Einstein? क्यों Bose-Einstein condensate बोलते हैं ये पांचवी अवस्था को? तो see, the story begins with the S.N. Bose, Satyendra Narayan Bose, Indian scientist है. He made some calculation. He made some calculation. For what? For the fifth state of matter called Bose-Einstein condensate. Einstein ने क्या किया? On the basis of the calculation of S.N. Bose, Einstein predicted. S.N. Bose ने कैलकुलेट किया, आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया, राइट. और 2001 में 2001 में जो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, दे आर 3 साइंटिस्ट. दिस थर्ड वन एरिक ए कॉर्नेल, सेकेंड वन वोल्फगैंग कैटरली, एंड थर्ड वन कार्ल ई बीमैन ऑफ USA. These 3 scientists achieved in creating fifth state of matter. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, S.N. बोस ने कैलकुलेशन किया किसके लिए? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए. आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया और 2001 में these 3 साइंटिस्ट
achieved. Very clear? So this is Bose-Einstein condensate. Next, know few more terms. This one is the boiling. Boiling. And next one is evaporation. Right? So how the two are different? कैसे different है दोनों? तो बॉइलिंग जो है इट्स अ बल्क फेनोमेनन. जैसे आप किसी बर्तन में पानी लेकर आप गर्म करते हो तो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है हल्का होकर के, और पूरे जो बॉडी ऑफ द वाटर होते हैं उसके पानी गर्म होते हैं. सो दैट्स वाई बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन. वेयर इज इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, इससे ठंडक पैदा होती है. ये क्या है? सरफेस फेनोमेनन है, सतह पर होता है. एंड इट डिपेंड्स कि एटमॉस्फेयर का कितना एरिया संपर्क में आया, या मैंने लिखा भी है, देख लीजिए. इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन, boiling bulk phenomenon, and the way evaporation rate depends on temperature, humidity, wind speed, surface exposed to the atmosphere. और आप देखेंगे क्या कि कपड़ा जब हम सुखाते हैं, गीले कपड़े को सुखाते हैं तो उसको फैला देते हैं. रीज़न यही होता है कि अधिक से अधिक एरिया क्या होगा, वह एटमॉस्फेयर के संपर्क में आए, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़े, वाष्पीकरण का दर बढ़े और जल्दी कपड़ा हमारा सूख जाए. तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हमारे जीवन में है. राइट. अब जो एक समरी में बता दूं, ये एट ए ग्लांस आई एम टेलिंग यू. बिलीशन मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. Solid, in case of solid, there is maximum force of attraction. In case of liquid, intermediate. In case of gas, no force of attraction or the negligible. Apart from three states of matter, solid, liquid and gas, there is a fourth state, plasma, which is the ionized state of matter. And next to the plasma, there is a fifth state called Bose-Einstein condensate. And Bose-Einstein condensate state, fifth state of matter, is achieved by cooling a gas of extremely low density to a super cool temperature, and you can get the plasma state in the atmosphere of the sun, or you can get in the fluorescent tube or the neon shine bulb. Now, a solid and liquid and the gases are mutually convertible by suitably adjusting the temperature. Now, when you want to convert solid into liquid, you have to add the heat. Again, from liquid to gas, you have to add the heat, and accordingly if you want to back from the gas to solid, gas to liquid or liquid to solid, you have to decrease the amount of heat. Okay, just we have talked of the so-called the solid carbon dioxide, and normally the carbon dioxide is available at the room temperature. Okay, but it can be found in the so-called the solid states also. If you decrease the temperature of the carbon dioxide by 1 atmosphere, you can bring back the gaseous state of CO2 into the so-called the solid state called the dry ice. Now, one thing I want to tell you that for the conversion of one state of matter into another state, we need two terms. One is the latent heat, and another one is the so-called the specific heat. A specific heat is the amount of heat that is needed to raise the temperature of unit mass of the substance by unity, whereas the latent heat is the amount of heat that is needed for the conversion of matter from one state to another at the same temperature. Say if you want to convert water at 100 degrees Celsius into the water at 100 degrees Celsius, means not vapor at 100 degrees Celsius, gas at 100 डिग्री सेल्सियस. आप एक पानी जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रह सकता है, वाष्प भी रह सकता है. उस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी रह सकता है, पानी भी रह सकता है. वेरी क्लियर. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो अगर बर्फ है आपका, उसको पानी में बदलना चाहते हैं तो आपको हीट जो चाहिए उस हीट का डेफिनेशन मिलेगा स्पेसिफिक हीट से. और यदि हम
क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये एरर हो गया। मैं बताना चाहूँगा जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी आपका है और उतना ही पर यदि वाष्प में पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं बर्फ़ को, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में बदलना चाहते हैं तो आपको हीट जो चाहिए उसकी परिभाषा मिलेगी किससे? लेटेंट हीट से। मैंने उल्टा कह दिया था। यदि आप चाहते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है उसको 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसकी जो परिभाषा मिलेगा हीट का वो मिलेगा आपको स्पेसिफिक हीट से। तो लेटेंट हीट में क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा और स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स।